میں سارا کو کال کر کے اطلاع دے دیتا ہوں۔ احد کہتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ سارا، میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ کال اٹھاتے ہی وہ شروع ہو چکا۔ سارا پریشان سی ہوگی، کیا وجیہ اور اس کے بوائے فرینڈ میں کوئی لڑائی چل رہی تھی؟ جواب میں نفی میں آیا تو احد چہلایا، تو کیا کوئی پریشانی تھی جو وہ 2 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں آئی؟ احد نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، سارے نے پھر سے جھوٹ بولا۔ سارا، وجیہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ 12 گھنٹوں سے دعا کرو تم، احد نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ سارا پر تو جیسے بجلی گری تھی۔ اس نے فوراً ٹکٹ کروائی اور پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچ چکی تھی۔ سارا راستہ وہی وجہ سوچتی ہوئی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں سارا شک عباس رضوی پر جا رہا تھا۔ وہ اسپتال پہنچی، وہاں صرف احد تھا، وہاج نہ جانے کہاں غائب تھا۔ وجہ کو ہوش آ چکا تھا، وہ خود میں ہمت جمع کرتی روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا۔ وجیہ کے سر اور ہاتھ پر پٹی میں جگہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی زرد لگ رہی تھی وہ اسے۔ کیسی ہے میری دوست؟ اس نے وجیہ کے ماتھے پر بوس دیا اور اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، وجیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اوکے لیڈیز، میں ذرا وہاج کو دیکھ لوں، نہ جانے کہاں غائب ہے۔ احد وہاج کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ وجیہ کو تھوڑا افسوس ہوا، کم از کم آج ہی وہ آ جاتا۔ وجیہ، کیا ہوا تھا؟ تم نے خودکشی کیوں کی؟ تم 1 سال میں کتنی ٹوٹی اور جڑی ہو، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تب تو تم نے یہ بھیانک قدم نہیں اٹھایا تھا، تو پھر آج کیوں؟ سارا بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ وہ وجیہ بہت پرسکون، کیونکہ وہ خوش تھی جو اس سے بیڑیے سے بچ گئی تھی۔ اپنی عزت اس نے خود بچائی تھی اور حراموں سے اس سے اللہ نے بچا لیا تھا۔ اس نے سارا کو ساری بات بتائی۔ سارا اس کے گلے لگ گئی۔ وجیہ رونے لگی تھی۔ دیکھا، تبھی منع کیا تھا کہ ابھی مت کرو میل۔ شکر ہے احد اور وہاج بھائی وہاں پہنچ گئے، ورنہ تو پتہ نہیں۔ سارا آگے نہ بول پائی۔ اب بس میں احد کو ساری بات بتا رہی ہوں۔ پہلے بھی تمہارے انکار کی سزا بھگت چکے ہیں ہم۔ خدا نواستہ وہ پھر سے کچھ کرے تو ہمارے ساتھ کوئی محافظ ہونا چاہیے۔ ایک مرد ہونا ضروری ہوتا ہے زندگی میں۔ اب بابا اور بھائی نہیں آ سکتے تو احد ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ سارا نے فیصلہ سنا۔ وجیہ خاموش رہی۔ اس سے کہنا یہ بات اپنی حد تک رکھے، اپنی کسی دوست یا فیملی کو نہ بتائے۔ دوست سے اس کا اشارہ وہاج کی طرف تھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اس سے بات سے بے خبر تھے کہ وہاج روم کے دروازے کے باہر ساری بات سن چکا تھا۔ وجہ جیسے اس سے کہہ رہی تھی، وہاج کو لگ رہا تھا کہ اس پر کوئی پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو چکا اور وہ بے خبر تھا۔ کتنا غلط سمجھ بیٹھا تھا میں اس بابا پاک لڑکی کو۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ اس میں وجیہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر جیسے وہ فیصلہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم، کیسا محسوس کر رہی ہو وجیہ؟ اس نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے وجیہ کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بہتر ہوں۔ اس نے اسلام کا جواب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہی دیا تھا، مگر فوراً ہی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کہاں تھے آپ وہاج بھائی؟ اب آ رہے ہیں آپ، سارا نے شکایتی لہجے میں کہا۔ احد کی رات کو کال آئی، اس وقت میں گہری نیند میں تھا، سوچا صبح آ جاؤں گا، آج آنکھ بھی دیر سے کھلی ہے، پھر یونی سے ایک کام تھا، اب سیدھا یہیں آیا ہوں۔ وہاج نے نہایت صفائی سے جھوٹ بولا۔ جھوٹے آدمی، بس یہ تھوڑی دیر پہلے ہی گیا تھا۔ وجیہ کے ہوش آنے کے بعد احد روم میں داخل ہوا اور اس کے باڑنا پھوڑا۔ وجیہ کو جیسے وہاج کی بات لاشعوری طور پر بری لگی، ذرا پلکیں اٹھا کر وہاج کو دیکھا جو احد کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظر وجیہ سے ملی تو وجیہ فوراً نظریں موڑ لی اور سارے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ تمہارا دوست نہیں آیا؟ احد نے سوال کیا۔ وجیہ نے قدمیں اچھال دیے۔ احد، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، مجھے بات کرنی ہے ڈاکٹر سے۔ سارا کو دراصل میں وجیہ کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ وجیہ ان دونوں کو فی الحال جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر وہاج کے سامنے کچھ بول نہ سکی۔ محترمہ، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ احد اور یہ سارے کے جانے کے بعد اس نے وجیہ کے چہرے پر الجھن دیکھی تو مسکراہٹ چھپائے بولا۔ وجیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ سو جاؤ تم ٹھیک سے، وہاج کہہ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پوری رات اس نے جیسے کانٹوں کو گزار دی تھی، پر ایسے کیوں تھا؟ اس کا وجیہ سے کوئی رشتہ تو نہ تھا، اور اب نہ جانے کیوں سارا اور وجیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے وجیہ کی طرف دیکھا جو آنکھیں مونڈے ہوئے تھی۔ دواؤں کے زیر اثر وہ دوبارہ فوراً ہی سو گئی تھی۔ ساری رات وہ جاگتا رہا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ وجیہ اور سارا کو اس مسئلے سے نکالنے کی تدبیر سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے اسے بھی نیند آ گئی۔ دیکھو ذرا مجنوں کو، دونوں یہیں سو گئے ہیں۔ مجنوں ہے کمینہ۔ سارا اور احد اندر آئے تو وہ دونوں سوتے پائے۔ احد بولے بغیر نہ رہ سکا۔ کبھی جو تم نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہوں۔ سارا منہ بنانے پر احد کو کہاں اثر ہونے والا تھا۔ وہاج بھائی وجیہ کی کو پسند کرتے ہیں نا؟ سارا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر وجیہ کو دیکھنے لگی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اور جانتی ہو ملکے کی بات کیا ہے؟ احد نے شرارت سے کیا سارا نے تجسس سے سوال کیا۔ میرا پاگل دوست خود بھی نہیں جانتا کہ وہ اس مغرور لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ احد کی بات پر سارا حیران ہوئی۔ میری دوست مغرور نہیں، سارا نے خفگی سے کہا۔ وجیہ تو دعاؤں کے زیر اثر سو رہی تھی، پر وہاج کھٹ پٹ سے اٹھ چکا تھا۔ وہاج بھائی، آپ اور احد بھی چلے جائیں، میں وجیہ کے پاس ہوں۔
अहद सुबह आ जाएगा। वैसे भी सुबह छुट्टी हो जाएगी। सारा को अहद और वहाइद बहुत थके थके लग रहे थे। वो इन्हें मजीद तंग नहीं करना चाह रही। नहीं, मैं तो तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। वहाइद तुम चले जाओ, मैं सारे के साथ हूँ। अहद ने फौरन सारे की बात की तारीफ की। लेकिन तुम थक भी तो गए हो ना, हमें तो आदत है अकेले रहने की। अहद ने नफी में सर हिलाया। वो सारी बात जानने के बाद किसी सूरत इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अहद सारा तुम दोनों जाओ, मैं यहीं पर हूँ। रात को मैंने वैसे भी काम करना है ऑफिस का। अहद तुम तो पता है यूनिवर्सिटी और ऑफिस साथ लेकर चलता हुए थोड़ा मसला हो जाते हैं। पापा पाकिस्तान में नहीं होते और अभी भी वो गए हुए हैं और मैं इस्लामाबाद नहीं जा पाया। इब्राहिम भाई अकेले संभाल रहे हैं ऑफिस। इन्हें कुछ काम करके देना है, इसलिए तुम दोनों जाओ और मैं वजिया के साथ ही रहूँगा। बेफिक्र रहो सारा। और मैं सुबह वजिया से निकाह करना चाहता हूँ। मैंने सारी बातें सुन ली हैं तुम दोनों की। ये बात वजिया को मत बताना कि मैं सब समझ चुका हूँ। वो लड़का बहुत खतरनाक है। मैं बहुत पहले से इसकी हरकतों से वाकिफ हूँ। जब हम ठिकाने लगा लेंगे तब वजिया तलाक लेकर किसी और से शादी अपनी मर्जी से मुताबिक शादी कर सकती है। वहाइज ने वाजियात बात तफसील से सारे के सामने रख दी। लेकिन निकाह की क्या जरूरत है? आप और अहद वैसे भी हमारी मदद कर सकते हैं। सारा को लगा वो वजिया को राजी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो खुद भी राजी नहीं होना चाहती थी और तावील करने लगी। जाहिर लड़की निकाह करके वो वजिया के साथ रहकर इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो बगैर निकाह के नहीं किया जा सकता। वहाज के बजाय अहद किया है ना। सारा ने लंबी सांस अंदर खींची। लेकिन वजिया क्यों मानेगी हमारी बात? इसने मुझे मना किया था कि अहद के अलावा ये बात किसी और को ना बताएं। आपको खुद पता चल जाएगी है, मगर वजिया को लगेगा जैसे मैंने बताई है। सारा वहाज से हाथ हुई। वजिया से बात करना मेरा मसला है। मैं इसे झूठ कह दूंगा और तुम इसे अलग समझा देना कि तुम जानती थी कि हो कि इसके साथ कोई मजबूत सहारा और अहद तुम जितनी जल्दी हो सके घर में बात करो अपने और सारे के निकाह के लिए। बासरा जी बहुत खतरनाक इंसान है, इसके खिलाफ हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। वहाज ने इन दोनों को सारी हिकमत अमली समझाई और अगले दिन मौलवी और कुछ गवाह लाने का कहकर घर भेज दिया। वो सोफे पर दराज वजिया के बारे में सोच रहा था। वजिया की आंख वहाज की मोबाइल बजने से खुली। वजिया ने वाकला पर नजर दौड़ाई तो सुबह के 4 बज रहे थे। अखत सारा गए, ये क्यों यहाँ रखे है? सारा नहीं रुक सकती थी। वजिया को सारा पर शदीद गुस्सा आया। तुम कब उठे? वहाज ने पानी का गिलास रखा तो इसकी आवाज से वहाज ने इसे देखा। कैसा महसूस कर रही हो? वहाज ने एक और सवाल किया। बेहतर। अब की बार वजिया ने जवाब देकर गोया वहाज पर एहसान कर दिया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और ये मुझे सारे ने कहा है कि तुमसे फ़ौरन निकाह कर लूँ। सारा के लिए भी अहद अपने घर में बात करने वाला है। मैं नहीं चाहता कि सारे के ज़हन में क्या चल रहा है, मगर जब इसने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। शायद वो नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो और तुम जानती हो कि आजकल हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियाँ अगवा हुई हैं। वहाज ने दखी छुपी तफसील बताई और शक न होने दिया कि वह सफ़ा के बारे में सब जानता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। वजिया ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। जब तुम्हें कोई और लड़का जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, तुम्हें अच्छे लगे, मिल जाए तो मुझसे तलाक ले सकती हो, क्योंकि मैं निकाह करने घर वालों के बताए बगैर कर रहा हूँ। मेरी एक आदत बचपन की बेहतर भी है। वहाज ने तफसील बताना ज़रूरी समझी। वजिया खामोश रही। ठीक है, तुम आराम करो, सुबह तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ज़ोहर की नमाज के बाद हमारे निकाह है। लफ्ज़ थे या कोई कांटे जो सिर्फ चुभने का काम कर रहे थे। ज़बत से इसकी आंखें सुर होने लगी। वहाज भी झिमकों के डीठों की तरह बगैर इसे देखने में मसरूफ था। सो जाओ तुम, वहाज ने अपनी ये से कहा। वजिया ने एक लंबी सांस ली और इधर उधर देखने लगी। मोबाइल ढूंढ रही हो? वो इसकी तलाशी निगाह पड़ चुका था। वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोककर पूछा। कह देने से टेक्स्ट नहीं लगता मोहतरमा। अगर तुम मुझे इग्नोर करके बदला लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, ले लो। बदला खुद को ही नुकसान होगा। इसने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालकर वजिया की तरफ बढ़ाया, जैसे इसने छुपने के अंदाज में लिया। मैं बाहर बैठ रहा हूँ, तुम्हें कोई काम हो तो बुलवा लेना। और कहकर दरवाजे की तरफ बाहर निकल गया। बुलाऊंगी कैसे? वजिया के मुंह से बेहतर निकला तो वह हाथ ही कदम रुके। नर्स को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, वो कहकर बाहर निकल गया और वजिया ने सर झटका। निकाह के बाद वो कमरे में आई तो कब का जबत के आंसू बहने लगे। वजिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी निकाह इस तरह होगा, इसके रिश्ते इसके साथ ना होंगे। वजिया आज कमरे में दाखिल हुआ तो वजिया को बुरी तरह रोते देखकर परेशान हुआ। मैं जानता हूँ तुम अपने घर वालों की कमी महसूस कर रही हो। अल्लाह को ऐसा ही मंजूर था। सब्र करो। पता है सब्र पहली चोट पर क्या गिर जाता है। आधी तकलीफ खत्म होने के बाद शिकवे भी खत्म कर देना भी सब्र थोड़ा ही होता है। सब्र तो वो होते हैं जो चोट लगते ही खुद को मुनफी रवैयों से रोक ले। वो इसका हाथ पकड़ के इसे तसल्ली दे रहा था। तुम बैठ
बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। रात को भूख लगे तो अहद को फोन करके ऑर्डर कर देना, कुछ वो ले आएगा। वो सोफे पे लेटते ही समझा गया, लेकिन मेरे पास तो अहद का नंबर ही नहीं। वजिया जो अभी से भूख महसूस कर रही थी जल्दी से बेहतर बोली, मेरे मोबाइल से कॉल कर लेना और पासवर्ड में मेरे नाम का पहला हरूफ लिखा खुल जाएगा। वहाज का इशारा डब्ल्यू की तरफ था, जिससे वजिया और वहाई दोनों के नाम शुरू होते थे। ठीक है, वजी कहकर लाइट बंद करके कमरे से बाहर चली गई और मेरा घर चेक किया। किचन में चावल वगैरह और सब्जी रखी थी। इसने जल्दी से पुलाव का सामान जमा करके बनाना शुरू किया। रात को देर तक स्टडी में बैठकर किताबें पढ़ती रही और फिर बेड पर आकर सो गई। उठ गई तो वो टेरेस से आया और वजिया बेड पर बैठी सोचों में गुम थी। क्या फजर की अजान हो चुकी है? इसने आंखें मसलते हुए सवाल किया। नहीं, अभी आधा घंटा है। वहाज इसकी इस हरकत पर से देखता रहा। बच्चों की तरह आंखें मसलते वो मासूम सी लग रही थी। तो आप क्यों उठी है? इसने बेजारी से पूछा। दरअसल गुस्सा खुद पर बहुत आ रहा था कि रात 12 बजे सोने के बाद भी इतनी जल्दी आंख खुल गई। वहाज को सोफे पर ना पाकर वो समझी थी कि वह नमाज के लिए जाग गया होगा। मैं तो काफी देर से उठा हुआ हूँ, दोपहर जल्दी सो गया था तो जल्दी आंख खुल गई। वहाज सोफे पर बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करने लगा, जबकि वजिया दोबारा लेट गई। सो मत जाना, अजान होने ही वाली है, नमाज पढ़ के सोना। इसने कोई जवाब ना दिया, वैसे ही लेटी रही। ना जाने इसे वहाज पर क्यों गुस्सा आ रहा था। वहाज वजू करने चला गया, वापस आया तो वो वैसे ही लेटी थी, आंखें बंद करके। सीधी लड़की। वहाज ने मुस्कुराते हुए ज़ेर लब कहा था, पर कमरे में मुकम्मल सुकूनत होने की वजह से वो अपने लिए कहा जाने वाले तारीफी जुमले सुन चुकी थी। वहाज के मोबाइल पर कॉल आई तो वो कॉल उठाकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो वजिया उठकर बैठ गई। इसी वक्त दरवाज़ा खुला था। दोबारा वो कार की चाबी लेने आया था। मोबाइल कान से लगाए वो टेबल तक आया। वजिया सर झुकाए बैठी थी। वो मुस्कुराहट छुपाता चाबी उठाकर बाहर निकल गया। वजिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले ही लम्हे एहसान की आवाज़ पर वो उठकर बस करने लगी। वो गैलरी में खड़ी बेआवाज रो रही थी। जब वहाज वापस आया था, सारा से बात हुई तो इसने कहा था कि वो वहाज को सब कुछ बता चुकी है। वजिया का अफसोस हुआ, मगर सारा ठीक कह रही थी कि वहाज को हकीकत बगाए बगैर अब्बास रजी से बदला नहीं ले सकते थे। कमरे का दरवाज़ा खुला तो वजिया जल्दी से खुद को नॉर्मल करने लगी। क्या सोच रही हो? वो इसके बराबर खड़ा हुआ खामोश रही। वहाज ने रुख मोड़ कर इसे देखा। वो रोती रही थी। इसे अफसोस हुआ। दोपहर 2 बजे, हम शावर के लिए निकल रहे हैं, तैयारी करना है, जल्दी सो जाओ, कुछ घंटे आराम कर लो। वहाज की बात के अख्ताम पर वो खामोशी से बेड पर आ बैठी। सारा को पेशावर जाने का टेक्स्ट करके लेट गई। वो कुछ देर गैलरी में खड़ा रहा, फिर कमरे में आ गया। वो सर तक ब्रेक के दौड़े सो रही थी। वो भी सोफे पर जाकर लेट गया। तुम अहद हो ना? अब्बास रजवी अहद को पहचान कर इसकी तरफ ही चलाया। इससे पहले कभी लड़कियों से डर नहीं लगा था, मगर वजिया के पास इसकी वीडियो का मौजूद होना इसे डरा रहा था। हाँ, मैं ही हूँ। आप वजिया के दोस्त है ना? अहद ने पर सोच में कहा। आपसे वजिया और सफ़ा के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो दोनों क्यों नहीं आ रही? इसने अंदर की मालूमात निकलवानी चाहिए। वजिया को तो इंतकाल हो चुका है, क्या आप नहीं जानते? अहद ने हैरत का मंजारा करते हुए कहा। क्या? वजिया का इंतकाल किस तरह हुआ? अब्बास रजवी को गोया इस खबर से सुकून महसूस हुआ। इसने भी अदाकारी शुरू कर दी। पता नहीं खुद से अचानक से इंतकाल हो गया बैठे बैठे। अहद ने सारा आज का यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? अब्बास रजवी अब अगले शिकार के बारे में मालूमात लेने लगा। वो शायद इस्लामाबाद में है, अहद ने कहकर फ़ोन कान से लगा लिया, गोया अब दफ़ा हो जाओ का सिग्नल दे रहा था। अहद ने सारी बात सारा को बताई। वो दोनों वहाज का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए और सब अपने मिशन पर काम शुरू करें। घर में कोई भी हमारे निकाह के बारे में नहीं जानता सवाए आपी के। वहाज ने बात का आगाज किया। आपकी आपी ने गुस्सा नहीं किया आप पर? वजिया के सवाल पर वहाज मुस्कुराया। आपी तो अफसोस कर रही थी कि वो हमारे निकाह वाले दिन पेशावर में क्यों थी, वरना इनका ससुराल तो कराची में ही है। वो कराची में होती तो निकाह में ज़रूर शरीक होती। वहाज मुस्कुराते हुए बता रहा था। आपकी आपी तो फिर बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाकी लोग क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? वजिया की आंखों में खौफ था। अल्लाह मालिक है, मामा शायद कुछ कहेंगी, लेकिन दादो बहुत अरमान सजाए बैठी है मेरी शादी को लेकर। वो पता नहीं कितना गुस्सा करें। और फिर हमारे यहाँ शादी मर्दारी में हो करती हैं। आपकी बार वहाज को भी डर महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि दादी से झूठ बोल दूँ, कहूँगा कि ये मेरी यूनिवर्सिटी में बैंड बनी हुई है, कराची के हालात बहुत ख़राब हैं, आगे पीछे कोई है नहीं, बला बला बला। वहाज बोलता रहा और वो सुनती रही। इसकी खामोशी नोट करके वहाज ने चेहरा मोड़कर इसकी जानब देखा तो वो रोने की शदाई आंसू बहाने में मसरूफ थी। वहाज को गुस्सा आने लगा। तुम किस खुशी में आंसू बहा रही हो? वहाज ने ज़फर किया। वो खामोश रही। अस्सलाम वालेकुम माँ। वहाज इसे घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी दादी के कमरे में ले आया। बैठो बेटा। इन्होंने नरमी से वजिया को मुखातिब किया तो वो सोफे पर बैठ गई।
یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے پٹھانی میں حاج سے سوال کیا۔ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، کچھ دن پہلے والد اور بہن کا انتقال ہوا ہے، باقی گھر میں کوئی نہیں، کراچی کے حالات بہت خراب تھے اس لیے یہاں لے آیا۔ وہ حاج نے تفصیل بتائی تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ ان کے دماغ میں خطرہ محسوس ہو گیا تھا۔ بہن ہی بنایا ہوئے ہے نا، کچھ اور تو نہیں بنایا ہوا؟ دادی نے بننے سکڑ کر پوچھا۔ خوف خدا کرے ماں، اس نے ناراضگی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ دادی جان شائستہ اردو میں سوال کیا۔ وجیہ نے مختصر سا جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہو، پٹھان ہو کیا؟ دادی نے اس کی تعریف کی۔ مما پٹھانی تھی اور ابو اردو اسپیکنگ۔ ابو کا خاندان کشمیر میں رہتا ہے، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنے خاندان کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی، جنہوں نے اس کے والد کو صرف اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے خاندان سے باہر شادی کی۔ سب گھر والے کہاں ہیں؟ وحاج نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وریشے شاپنگ پر گئی ہے اور تمہاری اماں ابا بھی اپنے کسی دوست کی یہاں دعوت میں گئے ہیں۔ دادی جان نے منہ بنایا۔ انہیں وحاج کے والدین کا آئے دن دعوتوں میں جانا بہت برا لگتا تھا۔ اتنے میں وریشہ کمرے میں داخل ہوتی دکھائی۔ تم کیا کچھ ماں کے لیے بچے کو بازاروں میں لے گھوم رہی ہو؟ سکون نہیں ہے تمہیں؟ وحاج زیان کو وریشہ کی گود سے لینے کے لیے آگے بڑھا۔ تم تو چپ کرو، تھکی ہوئی آئی ہو نا؟ سلام نہ دعا دماغ کھانا شروع کر دیا۔ وریشہ بری طرح بگڑ گئی تھی۔ وہ وجیہ کی موجودگی پا کر اس کی طرف بڑھی۔ اوہ وجیہ آئی ہے، وہ اس کی گلے لگی۔ وریشہ کو وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پسند آئی۔ میرے بیٹے سے نہیں ملو گی؟ وہ چھوٹتے ہوئی بولی تو وجیہ زیان کو لینے وحاج کی طرف بڑھی۔ وہ زیان کو گود میں لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی زیان کس پر گیا ہے؟ وجیہ نے سوال کیا۔ اپنے ماموں پر۔ وریشہ پہلے وحاج پر بول اٹھا۔ ایسا کیا ہے؟ وجیہ نے وریشہ سے تائید چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بات ایسے نظر انداز کی جاتی ہے جیسے ملازم ہو ان کا۔ وحاج نہ جانے کیوں بڑک اٹھا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ وریشہ تو ہنس دی جبکہ وجیہ بیچاری سم ہو گئی۔ ارے بیوقوف لڑکی، تم کیوں ڈر رہی ہے؟ چل تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ کمرے سے لے کے گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ تم فریش ہو کے راؤ میں کھانے لگاتی ہوں؟ وہ وجیہ کو کمرہ دکھا کر ہدایت دے کر جانے لگی تو وجیہ کھانے کا منع کر دیا۔ وہ سونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے تم آرام کر لو، زیان کو ابھی تمہارے پاس لا رہی ہوں، تنگ نہیں کرے گا۔ وریشہ زیان کو بیڈ پر سلا کر کچن میں چلی گئی۔ وجیہ نے شکر ادا کیا کہ اب تک کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ وہ بیڈ پر ڈر گئی۔ وجیہ اور زیان کہاں ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر۔ وحاج نے وجیہ کی کمی محسوس کی۔ وہ سو رہے ہیں۔ وجیہ کو بھوک نہیں تھی۔ وریشہ نے اطلاع دی تو وحاج کو حیرت ہوئی۔ فلائٹ میں بھی وجیہ نے بہت کم کھایا تھا، تھوڑا سا کھانا کھا کر ہی اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ میرے بیٹے نے کھانا کم کیوں کھایا ہے؟ وحاج کی دادی کو فکر ہوئی۔ بس ماں، پیٹ بھر گیا، بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر میں کراچی کے لیے نکل رہا ہوں، بہت سے کام مکمل کرنے ہیں، ماما پاپا کو بتا دینا۔ وہ ماں کو پیار کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وریشہ اس کی پش دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ شاید اس بات سے واقف ہو چکی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ اٹھ کی وجیہ کی آنکھیں کھلی تو وریشہ سامنے صوفے پہ بیٹھی کال پر بات کر رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھی تو آنکھیں رگڑ کر جوڑا بنایا۔ اتنے میں وریشہ کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ جی اٹھ کی، آپ کے ماما پاپا آ گئے؟ وجیہ کو سب سے پہلے اس کا خیال آیا۔ اسے چھوڑ کر اس کے گھر والوں کا پوچھنے لگی۔ جو اپنا ہے اس کے مت پوچھنا، اس کے گھر والوں کو ہی پوچھنا۔ وریشہ نے خفگی سے کہا۔ وہ بظاہر تو میرا ہے پر در حقیقت میرا نہیں، بالکل سفر کے ساتھی کی طرح، جو ہم سفر تو ہوتے ہیں مگر کچھ لمحات کے لیے، کسی نہ کسی موڑ پر جدا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وریشہ نے اس کے لہجے میں افسردگی محسوس کی تھی۔ یہ تو ہے مگر تمہارا اور میرا ساتھ ہمیشہ کیا ہے؟ وریشہ نے کہا تو وجیہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میرا مطلب اب تو ہم دوست ہیں نا، ہم کراچی میں ملتے رہیں گے اور تم اب میری چھوٹی بہن ہو ہمیشہ کے لیے۔ وریشہ نے محبت سے کہا تو وجیہ بھی مسکرا دی۔ وجیہ فریش ہو کر آئی تو وریشہ تیار کھڑی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے اپی؟ اس نے وریشہ کو بائیں میں دیکھا تو بول دی۔ تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ماما کے پاس زیان کو چھوڑ دوں گی۔ وہ اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہہ کر نیچے چلے گی۔ وجیہ ہبایا پہن کے نیچے آئی تو لاؤنج میں ایک باوقار سے شخص اور خوبصورت سی خاتون بیٹھی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وجیہ نے مسکراتے ہوئے سلام کی۔ کیسی ہے بیٹا آپ؟ سلام کا جواب دے کر وحاج کے والد نے اپنیت سے سوال کیا۔ اس نے الحمدللہ کہہ کر ان کا حال احوال پوچھا۔ وحاج کی والدہ حسنہ تو اس کی خوبصورتی میں جیسے کھو ہی گئی۔ کہاں جا رہی ہے بیٹے تم دونوں؟ انہوں نے نرمی سے سوال کیا۔ وریشہ نے انہیں اپنا سارا پلان بتایا اور زیان کو انہیں تھما کر پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور آپ کی کریں گی؟ وجیہ نے سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے وہاں سے سیکھی ہے، تم بھی سیکھ لینا۔ اس سے مشورہ دیا تو وجیہ کو محسوس ہوا کہ جیسے مذاق اڑایا گیا ہو اس کی بے بسی کا۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے وہ دونوں ریسٹورنٹ کی طرف بڑھی۔ اتنے میں گھر سے کال آنے لگی۔ وہ دونوں بغیر کھائے واپس آ گئی۔ فالتو میں اتنی ساری شاپنگ کروا دی آپ نے، اس نے ناراضگی سے کہا۔ کل میرے کزن آ رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں میری بہن ان کے سامنے بہت اچھی لگے۔ اس کی اپنائیت پر وجیہ کی آنکھیں بھر آئی۔ اگر وحاج نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہ بولا ہوتا تو کیا میں یہاں اتنی عزت سے رہ رہی ہوتی؟ نہیں،
बल्कि मैं यहाँ होती ही नहीं। वजह ने अफसरदी से सोचा। रात से नींद नहीं आ रही थी। वजह के बारे में सोचती तो गुस्सा आता कि ना बताए बगैर चला गया। वो टेरेस पर आ गई और जल्द अज जल्द इनकी जिंदगी से बहुत दूर जाने की दुआ करने लगी। इसे किसी पर बोझ नहीं बनना था। वो किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम दोनों? दरवाजे पर बेल हुई तो वो सिगरेट का एक लंबा कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में फेंककर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुंह पर हाथ पानी डालकर मेन डोर खोलना चल दिया। दरवाजा खुला और सारा और अहद सामने खड़े थे। वालेकुम सलाम। हम तो ठीक है, पर आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। सारा को इसकी शक्ल पर 12 बजे लग रहे थे। मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द था सुबह से। आओ अंदर आ जाओ। मैंने लेकर डाइनिंग रूम में आया। अहद ने एस्ट्रे में लातादार सिगरेट के टुकड़े देखे तो हैरत से वह हाथ को देखा। वो सिगरेट बहुत कम पीता था। आज की पूरी रात इन्होंने अब्बास रज़वी के खिलाफ हिकमत अमली तय करने में गुजारी थी। अगली सुबह वह तीनों अब्बास रज़वी के वालिद के ऊपर सारे सबूत लेकर पहुंच गए। बहुत मुश्किल से अफसर ने जाने की इजाज़त मिली। अस्सलाम वालेकुम, हम अब्बास के यूनिवर्सिटी फेलो हैं। आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम ये सारी मालूमात पुलिस या किसी कानूनी अदारे को भी दे सकते थे, मगर हमें यकीन था कि आप एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे मुसलमान भी हैं, इसलिए आपके पास चले आए। वहाज ने तनवीर बानी। हाँ बेटो, क्या बात है? इन्होंने परेशानी हल्की दाढ़ी पर शफीक सी मुस्कान चेहरे पर सजाए। वो बावकार शख्स के हिस्से भी अब्बास रज़वी जैसे शख्स का बाप नहीं लग रहा था। आखिर ने आगे बढ़कर लैपटॉप खोला और सारी वीडियोस इनके सामने खोल दी। वो अपनी बेटी की शर्मनाक हरकत देखकर पानी पानी हो चुके थे। आंसू इनसे रुखसारों पर फेर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा इतनी गिरी हुई हरकतें भी कर सकता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। मैं बास जैसे बेटे को पालने से बेहतर है जानवर पाल लूं। निहायत शर्मिंदा और गमगीन थे। वो अल्लाह के कहर से बचने के लिए अपना बेटा कुर्बान कर सकते थे। इन्हें हक के साथ देना था, अपने बेटा कुर्बान करना था, और अल्लाह के खौफ रखने वाले अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुर्बान कर देते हैं। थैंक यू अंकल। वहाज इनके गले लगा और काफी देर तक वो तीनों इन्हें दिलासा देते रहे। और वापस आई तो इन्हें महसूस हुआ कि गोया एक मार्का सरका हुआ। सारा, जुम्मे को तुम यूनिवर्सिटी जाओगी और वो भी अकेली, और कोशिश करना आवाज से सामना जरूर हो। वहाज ने सारा को मुखातब किया और अगला लाहे अमल बताने लगा। ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा वहाज। अहद को परेशानी हुई। अल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देता है। मुझे तो अल्लाह पर कामिल यकीन है कि जो होगा अच्छा ही होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो अहद? वहाज से पहले सारा बोल उठी। वहाज और अहद बेहतर मुस्कुराए। जब औरतें डरने को बजाय मर्दों के साथ सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर जुल्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो बहुत जल्द ही माशरे से बेड़ियों का खात्मा हो जाए। चलो अब तुम लोग घर जाओ। मैंने कल यहाँ से लाहौर जाना है और सारा को लेकर पेशावर जाना है। वहाँ से फिर 2 दिन तक रुक कर आऊँगा। 1 हफ्ते लग ही जाएगा इन सब में। वहाज ने प्लान बताया तो अहद ने मुस्कुरा कर मानी हैज अंदाज में से देखा। हाँ ज़रूर मेरे भाई, भाभी बगैर तेरा दिल कहाँ लगता होगा। वहाज ने इसकी बात सुनकर इसे गोरी से नवाजा, पर अहद को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। ओके अल्लाह हाफ़िज़, सो जाओ तो मेरे यार। अहद इससे मिलकर सारा को लेकर बाहर निकल गया। वहाज बेड पर लेट के बहुत थकन महसूस हो रही थी। वो वजिया को याद करना नहीं चाहता था, मगर जब भी तन्हा था वो जरूर याद आती। आधा सफ़र गुजर गया, शायद हमारे साथ अब बहुत कम वक्त साल रह गया। फिर वो कहाँ और हम कहाँ। वहाज ने ज़ेर लब बढ़ाया, पर कौन जाने के बाकी मांद सफ़र कुछ वक्तों का है या सारी ज़िंदगी का। वहाज सारे के साथ लाउंज में दाखिल हुआ तो सब घर वाले भी वहाँ मौजूद थे, सवाए जियान और वजिया के। सारा सब घर वालों से मिली। सफ़र कैसा रहा? फरीशा ने पूछा तो सारे ने अच्छा कहकर वहाज की तरफ देखा। जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ जाकर, हुसैना ने कहा तो सारा को तो खड़ी होगी, पर वहाज चाय मंगवा कर वहीं बैठ गया। मेरा रूम तैयार है ना चाची? सारा ने गेस्ट रूम का मुतालिक सवाल किया तो हुसैना ने इस बात में सर हिला दिया। सारा अपना बैग लेकर ही ऊपर जाने लगी। बैग छोड़ दो, भारी होगा, वहाज ले आएगा, वहाज की दादी ने कहा तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। वहाज जाओ, सारा को बैग दो, इसे सामान चाहिए होगा। वरीशा नीचे आई और वहाज को ऊपर भेजकर दोबारा सोफे पर बैठ गई। वहाज सारा को बैग देकर अपने कमरे में चला आया। कमरे की लाइट जलाई तो जियान और वजिया वैसे ही सो रहे थे। कितने सोती हैं दोनों, जब गया था तभी सो रहे थे, आया हूँ तब भी सो रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं भाई इनको। और बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर निकला तो वजिया कमरे में नहीं थी। शर्ट पहनकर बाल सेट किया, परफ्यूम लगाकर कमरे से निकलने लगा तो खांसने की आवाज़ पर इसके कदम जमे। वो गैलरी में खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। वहाज की बारी आवाज़ वजिया के समाज से टकराई तो इसने जल्दी से आंसू साफ किए। वहाज हिलाकर घूर रहा था, इसके रोते हुए इसे देख न सका। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वजिया की आवाज़ खांसने की वजह से काफ़ी खराब हो रही थी। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वहाज ने इसी तरफ चेहरा मोड़ा तो सफ़ेद लिबास में रोए रोए से चेहरे के साथ सुर्ख नाक लिए इसे ही देख रही थी।
वहाज ने इसकी तरफ चेहरा मोड़ा तो वो सामने देखने लगी। मैं भी ठीक हूँ। वजिया तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, वरना पिछले सारे हफ्तों वह शदीद बीमार रही थी। वैसे ठीक लग तो नहीं रही, वो इसकी जर्द रंगत देखकर बोला था। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं रही। वो मुस्कुराते ही बोले, आप कौन सी ठीक है? वहाज ने हफ्की से बोला। वजिया समझते ही, चलो आप तुम्हें अपनी कज़न से मिलवाता हूँ, सारा आई है। वहाज ने कहा तो वजिया चेहरा मोड़ के इसकी तरफ देखा। सिर्फ कज़न? इसने बड़े अजीब अंदाज में सवाल किया। जब सब जानती हो तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो नाराज हुआ। अच्छा सॉरी, कज़न तो ना बोले ना, आप सीधे सीधे फ्रांसी बोल दें। टेक्स थोड़ी ना लगता है। वो थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी, जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मुंह हाथ धोकर बाहर निकले। वहाज ध्यान पर जगा हुआ था। अरे उठ जाएगा का ना, वो इससे बोलने लगी। वहाज मुस्कुराकर खड़ा हो गया। दोनों साथ नीचे आकर की तरफ बढ़े। वैसे मुहतरमा, आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वहाज ने सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे छेड़ा। वो इससे आगे थी। अपनी मर्जी से तो नहीं सोई थी। सुबह फजर के बाद आप ही लेके गई थी कि गेस्ट रूम सारा के लिए साफ होगा और ऊपर वाले गेस्ट रूम बंद हुए हैं, तो वजाहत देने लगी। आप फिक्र न करें, आज आप ही के कमरे में सोऊंगी। वो संजीदगी से बोले। वहाज हंसी, मजाक कर रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो जाना, मैं कहीं और सो जाऊंगा। वहाज बगैर जवाब दिए लाउंज में दाखिल होगी। सबको सलाम करके खालिद सोफे पर जाकर बैठी। सारा तो उसे देखती ही चलेगी। वहाज भी वजिया के बराबर सोफे पर आ बैठा। वरिशा ने सारा व वजिया को तारीफ कराया। कितनी प्यारी है ने ये। सारा ने वरिशा के कान में खरगोशी की। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही सुकड़ और सलीके मन। दादी मान तो इसकी फैन हो गई थी। हाँ भाई, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो बेटा। यूसुफ साहब ने भी तारीफ की। वहाज इसे गहरी नजरों से देखने लगा। वजिया की नजरें ऐसे मिली तो वो नजरें झुका गई। बस वही बहन किसकी है? वरिशा ने क्रेडिट लेना चाहा। ऑफ कोर्स मेरी। वहाज फौरन बोल पड़ा। जी नहीं, मेरी बहन है। वरिशा बाकायदा लड़ने लगी। मेरी। वहाज ने दाई का मसारी किया। भाई तुम दोनों ही बता दो किसकी बहन हो? सारा तंग आकर बोली। वरिशा आप ही की। वजिया ने कहा तो वहाज ने किसी से देखा, फिर कोई सोच कर मुस्कुरा दिया। पार्टी बदल ली ना तुमने? वहाज ने कहा तो वजिया ने जोर जोरों से इस बात में सर हिलाया जिसे सब हंस दी। सब्र करो, तुम्हें बताता हूँ। वहाज ने दिल में सोचा। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। वजिया ने दादी माँ के कमरे में कहवा भिजवा दिया था और अपनी और वरिशा की चाय बनाई। सारा ना चाय पीती थी ना कॉफ़ी। सारा अपने कमरे में जा रही थी जब वजिया ने इसे कॉफ़ी का कप थमाया और वहाज के कमरे में पहुंचाने का कहा। वहाज जो वजिया को ढूंढता हो किचन में आ रहा था, इनकी बातें सुनकर दरवाजे के बाहर ही रुका। तुम वहाज को वहाज भाई क्यों नहीं कहती? सारा ने वहाजिया से कहा। कभी कहा ही नहीं तो जुबान पर भी नहीं चढ़ा। वजिया सारे की सारी बातें समझ चुकी थी, इसलिए वाजियत दी, वरना वाजियत देने की इसे आदत ना थी। और तुम कहाँ जा रही हो? सारे ने कहा तो वजिया ने ड्रेस कहकर आगे कदम बढ़ा दिए। इस वक्त, और वो भी इतनी सर्दी में। सारा दोबारा बोल उठी। मुझे सर्दी पसंद है, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। वजिया मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई। वहाज दीवार की ओंठ में छुप गया था। वो छत पर आई तो सर्दी महसूस। इसे न जाने क्यों सारे की बातें याद आने लगी। वजी, मुझे लगता है वहाज तुमसे मोहब्बत करता है, और पता है आहद को भी यही लगता है। सारा ने कहा तो वो बेबसी से मुस्कुराई। सारा इसकी जिंदगी में पहले कोई है और मैं किसी तरह भी मासूम लड़की का हक मार दूं, वो बचपन से इसके साथ मंसूब है। और जानती हो मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, कभी कभी घुटन सी महसूस होती है, दिल करता है भागकर कराची आ जाऊं। अगर अब्बास वाला मसला हल हो जाए तो मैं यहाँ एक दिन रहना पसंद न करूँ। सारा को इसकी बात पर गुस्सा आया और हमेशा की तरह इसने काल काट दी। एक तो इस लड़की की पुरानी आदत है काल काटना। गुस्से में सारा की बातों में वजिया अफसरदा हो गई, मगर इसकी हरकत याद आई तो मुस्कुरा दी। इतना मुस्कुराया कि सूची में जा रहा है। वहाज इसके बराबर आ खड़ा हुआ और रुख मोड़कर से देखने लगा। सारा याद आ रही थी। वजिया जल्दी से बोली और चाय का कप लबों से लगाया। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारा भाई नहीं तो क्या हूँ? वहाज को शरारत सूझी। हस्बैंड, वजिया ने अचानक से कहा और फिर जल्दी से पछतावा हुआ। फौरन सर झुका लिया। क्या बता दें सबको? वो संजीदा, मुझे घर से निकलवाना है तो बता दे, मैं हो जाती हूँ। वजिया ने इसकी आंखों में गौर से देखते हुए कहा। अगर मैं कहूँगा मुझे तो घर में रखना है, फिर वैसे गहरी नजरों से देखने लगा। वजिया ने नजरें झुकाई तो जैसे घर में रखना है वो नीचे ही है, कहीं दो भेजवाऊँ? वजिया की बात और उत्साह दजमजा हुआ। माफ कहीं कर दो, ऐसा मुंह बनाया। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, तारीखी साल के आखिर की तय है हुई होगी है, कुछ माह सब्र कर लें। वजिया वजह हाज ने हैरत से देखा जबकि वो नीचे की तरफ बढ़ गई। वो सीधी लान में आई थी। वो कमरे में नहीं जाना चाहती। वो मोबाइल में मसरूफ होने के नाकाम कोशिश करने लगी। वह बिल्कुल भी इसके जहन से महफूज नहीं हो रहा था। वो हाज गुस्से में सीधा वरिशा के कमरे में गया। इसने जल्दी से फोन काटा और हैरत से वो हाज की तरफ देखा। ऐसे क्या घूर रही हो भाई? वो हफ्की से बोली। मेरी शादी की तारीख तय हो गई है और किसी ने मुझे बताया भी जरूरी नहीं समझा। बस सख्त गुस्से में था। हाँ कल ही हुई थी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो आम से अंदाज में बोले। मुझसे पूछे बगैर क्यों की वो घर जा?
ईगो तुमसे पहले बात हो चुकी थी, जो जिस तरह तय हुआ था इसी तरह हुआ, वो संजीदा हुई। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, वहाज ने कमजोर सा एहतजाज किया। पर क्यों? ये सब तो पहले ही तय हो गया था। वरिशा का शक यकीन में बदल रहा था। मैं थक गया हूँ, हाउस जॉब के बाद कुछ दिन तो आराम करूंगा ना। इसने बहाना बनाया। हाँ, जैसे शादी के बाद हम तुम्हें किचन में संभालने भेज देंगे, करते रहना आराम। वरिशा जानबूझकर इसके बहाने रिजेक्ट करती रही। यार, इसने बेबसी से दीवार पर मुक्का मारा। वो चला गया था। वजिया किचन में कप रखकर कमरे में चली आई। जियान रो रहा था और वरिशा न जाने किन ख्यालात में थी। वजिया ने जल्दी से आगे बढ़कर जियान को गोद में लिया। आप ही क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? वरिशा ने न समझे से वजिया को देखा। हाँ, सब ठीक है। बहुत रात हो चुकी है, उसे भूख लग रही होगी। इसने जियान को गोद में लिया और लाइट्स ऑफ करवा दी। वजिया बेड के दूसरी साइड पर आके लेट गई, पर इसकी नींद न जाने कहाँ हो गई थी। पर वो डिठो की तरह लेटी रही। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल पर वहाज के अलावा सब ही मौजूद थे। अब रहीम साहब की बारी। आवाज पर सब ने सलाम का जवाब दिया। वरिशी बेटा, वहाज आई अब तक क्यों नहीं उठा? अब रहीम साहब ने सवाल किया तो वरिशी ने लाइलमी का इज़हार किया, जबकि सारा इसे बुलाने इसी कमरे की तरफ बढ़ी। इनके कमरे में तो कोई भी नहीं है। सारा कुर्सी खींच कर दोबारा बैठ गई। किसी को बताए बगैर ये कराची चला जाते हैं। पता नहीं इतना लापरवाह कब से हो गया है। हुसैना को गुस्सा आया। सब खामोशी से नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके सारी खवातीन बाएलान में जा बैठी थी। सर्दियों में गर्म तो कुछ सुकून दे रही थी। सारा बोर होने लगी तो वापस कमरे में चली गई। जोहर की अज़ान हुई तो माँ अपने कमरे में चली गई, जबकि वजिया किताबें लेकर स्टडी की तरफ बढ़ गई। लाइन में सिर्फ वरिशे और उसकी वालदा हुस्ना बची थी। मामा, मुझे तो लगते है वहाज वजिया से मोहब्बत करता है। वरिशे ने सारी बात इन्हें बताई जो इसकी और वहाज के दरमियान हुई थी। हुसैना परेशान हो गई। वजिया इन्हें भी बहुत पसंद थी, मगर वो अपनी ख्वाहिश ज़बान पर नहीं ला सकती थी। मेरी तो खुद ख्वाहिश यही है कि मेरी बहू हर फन वाला हो। सारा अच्छी है मगर वजिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हुसैन ने कहना शुरू किया। सुकड़ होना या घर अच्छी खिदमत अमली में मेंटेन करना इतना मानी भी नहीं रखता। हमें तो बस अपने इकलौते भाई की खुशी देखनी चाहिए। जबरदस्ती के रिश्ते तो वैसे भी पायदार नहीं होते। वरिशा अफसरदगी से बोली। लेकिन बेटा, ये भी तो नामुमकिन है कि सारे के बजाय वजिया को इस घर की बहू के तौर पर मुतारफ करवाया जाए। सारे से वजहाज की निस्बत बचपन से तय है। उसने भी अफसरदा नजर आने लगी। काश की मुमकिन हो जाए कि सारा के बजाय वजिया मेरी भाभी हो। वरिशा ने दुआ की तो हुस्ना नफी में सर हिलाती में मशकूर मुस्कुराती। अब्बास रजवी फ्रेगेस बार्बर से निकल रहा था जब इससे सारा नजर आई। कितने अरसे से वो इस लड़की को ढूंढ रहा था। आगे इस्लामाबाद से इसने सारा का रास्ता रोका। जी, वो मुश्किल मुस्कुराई। मैंने सुना है वजह की डेथ हो गई है। बहुत अफसोस हुआ। मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। इसने शिकायती लहजे में कहा तो सारा का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले। दरअसल मुझे भी बहुत लेट पता चला, क्योंकि मैं कराची में नहीं थी। आप गमगीन ना हो, जो अल्लाह का मंजूर। वो अफसरदगी से बोली। अपना ख्याल रखिएगा और वजिया के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे घर जाना है, मैं चलती हूँ। सारा कहकर आगे बढ़ गई। बास इसकी पक्ष देखता रहा। जब वो गायब होगी तो बास जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। सारा घर में दाखिल हुई तो बाजार घर में कोई भी ना था। फ्लैट का दरवाजा लॉक करना वो जानबूझकर भूल गई थी। किचन में खड़ी पानी पी रही थी जब वो वहाँ आया। तुम यहाँ कैसे आए? वो पानी पीकर पलटी तो बास रजवी सामने खड़ा था। इसने ड्रामा शुरू किया। जी सारी साहिबा, जब एक बार आ सकता हूँ तो क्या दोबारा नहीं आ सकता? कि तुम्हें मेरा आना बुरा लगा क्या? वो इसके करीब बढ़ रहा था। करीब मत आना मेरे, वो चिल्लाई थी। ऐसे ही चला रही थी तेरी दोस्त भी। अब शराफत से लैपटॉप खोलो और सारा डेटा डिलीट कर। वो भी दाड़ा। सारा किसी मशीन की तरह इसकी हिदायत पर अमल करने लगी। वैसे तेरी दोस्त भी बड़ी जिद्दी थी। मार खा खा कर डेटा डिलीट किया था और एकदम हो। इसकी बात सुनकर वहाज का खून खोलने लगा। इससे बर्दाश्त न हो रहा था। वो जज्बात में आकर गलती कर बैठा। मेरी बीवी के बारे में कोई बकवास तूने तो अपनी गंदी जबान से की तो वो तेरी आखिरी दिन होगा। इसने इसके गाल पर मुका जड़ा। ओह, मेरी जान ने शादी भी कर ली थी, मुझे बुलाया भी नहीं। और तुम कहाँ छुपे हुए हो बुज़दिल? अब्बास अभी भी सुकून महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि इसके गंदे कारनामे के सारे सबूत खत्म हो गए हैं। तेरा काम खत्म। अब्बास रजी, ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है और हसास इदारे इसको लाइव दिखा रहे हैं। हाय ने इसे दिखा दिया तो वो उल्टा गिरा। सारा को इसकी पिछली पॉकेट में गन नजर आई तो इसने जल्दी से गन निकाल कर आवाज पर तान ली। वाह लड़की, तुमने क्या तरबियत हासिल की है शूट करने की, जो दो लड़कों के होते हुए भी तुम गन पकड़कर खड़ी हो। अब्बास रजवी स्त्री आसान नहीं। अब्बास रजी, बात कुछ यूँ है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि लड़कियाँ इतनी कमज़ोर नहीं जितना तुम इन्हें समझते हो। वो गुस्से में बोली। ओ आई सी। वो हैरानगी से बोला। तो फिर कहाँ है तेरी बेबी? वो हाई गुस्से से लाल हो रहा था और अब्बास से मजीद गुस्सा दिलाने आ गया था। इससे पहले कि एक और मुक्का अब्बास को पड़ता, एक गोली चली थी और इसी लम्हे अब्बास साइड पर हो गया। दरअसल अब्बास वहाज के मुक्के से बचने के लिए साइड पर हुआ था। इस वजह से अब्बास को लगने वाली गोली वहाज के दाएं बाजू में होती हुई गुजर गई।
गोली की आवाज़ सुनते ही पुलिस कुछ लोग जो इन्होंने पहले ही बुला लिए थे सामने आ गए। सारा शौक थी, इसके हाथों से गन नीचे गिरी। अहद ने हैरत से वहाज की तरफ देखा जो जमीन पर बैठकर कड़हा रहा था। खून बहुत तेजी से बह रहा था। वहाज हिम्मत से काम लो, हमें जल्द अस्पताल पहुंचना है। अहद ने इसे सहारा देकर खड़ा किया। पुलिस अब्बास रजवी को हथकड़ियां लगा चुकी थी। वो उस पर सुकून था क्योंकि इससे खुशफहमी थी कि इसका बाप इसे छुड़वा लेगा। सारा भागकर वजिया का दुपट्टा ले आई और वहाज के हाथ पर बांध दिया ताकि खून रुक जाए। अहद बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। वहाज ने आंखें मोड़ ली। वो मोहब्बत का हक अदा कर चुका था। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो कुछ देर में रजवी साहब भी आ गए। सारा मुसलसल रोई जा रही थी। बस करो सारा, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। अहद को तकलीफ हो रही थी। जी बेटा, आपने तो बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। अब्बास के वालिद ने इसके सर पर हाथ रखा। 2 घंटे इसने सूली पर गुजारे और फिर डॉक्टर ने आकर खतरे से बाहर होने की इत्तला दी। इन सब ने सुकून का सांस लिया। सारा के आंसू थम गए। इन सब के शुक्र अदा किया और अहद वरीशा का नंबर डायल करने लगा। बस कर जाओ वजिया, अब तो वहाज बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे सामने ही अहद की कॉल आई है और तुम रोई जा रही हो। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा शहजादा भी रोने लग गया। वरीशा ने अहद से बात करके वजिया को इसके खतरे से बाहर होने की खुशखबरी दी तो वो चुप होने के बजाय रोती गई। इन दोनों ने साथ ही सारी रिकॉर्डिंग देखी थी। जब से वहाज को गोली लगी थी वजिया रोई जा रही थी। वजिया शुक्राने के नफल पढ़ने गई तो वरीशा बैग पैक करने चल गई। वहाज के वालिदैन सारा को छोड़ने लाहौर गए हुए थे और 2 दिन रहकर अगले दिन वापस आना था। और इनके आने से एक दिन पहले की कराची की फ्लाइट वजिया और वरीशा लेकर अब रहीम कंफर्म करवा चुका था। चलो वजिया, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हम कराची के लिए निकल रहे हैं। वजिया दुआ मांग रही थी जब वरीशा ने जियान को तैयार करके आई थी। नहीं आपी, आप जाएं, कराची में माँ के पास हूँ। मैं कल या परसों अंकल के साथ आ जाऊंगी। वजिया ने साफ इनकार कर दिया। तुम दोनों ने तैयारी नहीं होना। इब्राहिम ने दोनों को बगौर देखा। वजिया कह रही है माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, पापा के साथ आ जाएगी। वरीशा को अच्छा लगा वजिया का इसकी फैमिली की फिक्र करना और इनको अलविदा करके टेरेस पर आ गई। इसने कराची न जाने का फैसला इसलिए किया था कि वह भी वहाज का सामना नहीं करना चाहती थी। वो इसी घर में वो अपने रास्ते वहाज से अलग करना चाहती थी। अब्बास कुफर करदार तक पहुंच चुका था और अब वजिया को किसी के खौफ नहीं महसूस हो रहा था। इसने बैग पैक किया मगर वहाज के वालिदैन के लौटने तक के लिए वहाँ रुकी। रात को वहाज की दादी के साथ खाना खाया, बहुत सारी बातें की। इससे ये बुजुर्ग खातून बहुत पसंद थी। 12 बजे के बाद वापस कमरे में आ गई। नमाज पढ़ के वहाज के कमरे में आई और वहाँ बैठकर गुजरे दिनों के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते जाने कब नींद आई और वहीं सो गई। फजर के लिए उठी तो वापस नींद ना आई। नमाज कुरान पढ़ के गैलरी में आई। उसने और अब रहीम वापस आ चुके थे। अब मुझे चलना चाहिए। इसने जल्दी से सामान समेटा और तैयार होकर बाहर आ गई। चौकीदार को कराची जाने का इन्फॉर्म करके वो घर से निकली। वहाज के घर पर एक नजर डाली तो एक आंसू उसके गाल पर फिसल गया। कराची अगर वो सीधी अपने घर आई। इसने सारा को कॉल नहीं की थी। सारा आजकल अस्पताल में रह रही थी। अगले के ही दिन सारा ये किसी को भी अपनी कराची आने का बताना नहीं चाहती थी। वहाज के बारे में सोचती तो अफसरदा हो जाती। एक तो बहुत बड़ा एहसान वहाज ने इस पर कर दिया था और इसके बहुत से एहसानों के नीचे दबी हुई थी। सारा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें वहाज जैसे इंसान का साथ मिलेगा। इसने सोचा और नमाज के लिए चलेगी। इसे अपने मौसम के लिए दुआ भी तो करनी थी। लंबी उम्र की, अच्छी जिंदगी, ख्वाहिशों की तकमील की और हमेशा खुश रहने की। अगले 2 रोज वो घर में बोर हो रही थी पर सारा को नहीं बताया था कि वो कराची आ चुकी है। वो जानती थी अगर इसने ये बात सारा को बताई तो वो इसे जरूर वहाज से मिलने का कहेगी और वो वहाज से मिलने नहीं चाहती थी। इसके लिए यही काफी था कि वो हैरियत से है। आज सुबह से ही इसे तबीयत बोझल सी महसूस हो रही थी। घर का काम करके फारिग हुई तो फराश होकर नीचे चाय बनाई और लाउंज में आकर बैठ गई। चाय पीते हुए मुसलसल वहाज के बारे में सोच रही थी। वो वहाज से इतलाक के बारे में बात करना चाहती थी मगर समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बात करे। तबीयत पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया, तलाक के लिए किस तरह करती। इसे अपना आप बहुत खुद गर्ज लगा। वो वहाज को अपनी तरफ से किसी और परेशानियों में नहीं डालना चाहती थी। चाय पीकर इसने सोफे की बेच से सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। इस घर में इसे बाबा और सफ़ा बहुत याद आते थे। आंसू उसकी आंखों से निकलकर इस चेहरा भगाने लगे। तुम्हें रोने का ठेका मिला हुआ है मोहतरमा। शनासा आवाज़ पर वजीर ने झटके से आंखें खोली। आपके पास घर की चाबी कहाँ से आई? वजीर ने वहाज को साथ बैठे देखा तो हैरत से बोली, अब्बास के खिलाफ सारे प्लान यहाँ पर ही बनते थे, इसलिए हम सब के पास चाबी थी। इसने वाज़ेह दी। वजीर ने वहाज को बगौर देखा। इसने पूरी आस्तीन वाली ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो कि कोई गोली लगने पर मिलने के बजाय मेरे घर से भाग गई। वहाज ने शिकवा किया तो वजीर ने नजरें झुका ली। वो इसे ही देख रहा था। क्या इतना बुरा हूँ मैं? वो खफा खामोश रही तो वहाज एक बार फिर बोला। वजीर ने नफ़ी में सर लाए। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि जितना आपने मेरे लिए किया
کسی نے نہیں کیا ہوگا، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں وجیہ، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہ تھا، بس تمہارا منتظر تھا ہاسپٹل میں، اور جب یہ پتہ چلا کہ تم کراچی میں ہو تب بہت افسوس ہوا۔ بہرحال ہمارے درمیان ایک رشتہ بھی ہے۔ وہاج کو وجیہ کی اس بے رخی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ سوری وہاج، ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ پائی، مجھے معاف کر دیں، اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ وہاج مسکرائے۔ کیسی ہو تم؟ وہاج نے بات بدل دی۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ درد تو نہیں ہوتا؟ بس آپ کو فون کرنے لگی تھی۔ بھائی نے اس کی بات پر مسکرانے پر اتفاق کیا۔ درد ہوتا ہے، ابھی اسپتال سے چھٹی ہوئی تو میں سیدھا یہاں آ گیا، وہاج نے اسے بتایا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وجیہ نے بات بدلی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ وہ فکر مند ہوا۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے مجھے طلاق دے دیں، خدا نخواستہ آپ کی فیملی کو پتہ چلا تو سب بہت ناراض ہوں گے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اتنے سارے لوگوں کی محبت ملی ہے جو میں کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے تفصیلی ساری بات بتائی۔ وہاج بہت خاموشی سے سنتا رہا۔ کیا کہتا؟ کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ میں تمہاری خواہش جلد پوری کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، اور یاد رکھنا اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو بندہ حاضر ہے۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں وجیہ، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہو سکے تو پہلے اپنے لیے مضبوط سہارا ڈھونڈ لو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ خدا حافظ، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کتنی تکلیف سے کہے گئے تھے یہ جملے، وجیہ پر تو جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہاج آگے بڑھ ہی تھا جب وجیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا دایاں ہاتھ بازو پکڑا۔ وہاج کی سسکی نکلی کہ وہ اس سے اچھا لگا تھا یوں روک جانا۔ مجھے اس بازو پر گولی لگی ہے، ابھی بھی درد ہے، تم کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو؟ وہ فوراً نارمل ہوا تھا۔ وجیہ نے فوراً اس کا بازو چھوڑا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں جو آپ سے منسوب ہے وہ آپ سے کب سے کتنی محبت کرتی ہے؟ میں کسی کا حق نہیں چھین سکتی وہاج۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس بات کی فکر میں تمہیں ذرا آس پاس غور کرنا، شاید کہیں تم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ بہت درد سہا ہے اس نے تمہاری خاطر۔ وہ اس کا گال تھپا کر آگے بڑھ گیا۔ وجیہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ابھی بھی آزمائش باقی ہے؟ اللہ جی، وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ وہاج کافی دیر سے سڑکوں پر گاڑی دڑواتا رہا، پھر ساحل سمندر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ وجیہ کی ساری باتیں اس کی ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تو وہ میرے لیے ہی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے؟ کیا وہ مجھے سے محبت کرنے لگی ہے؟ دل نے سوال اٹھایا۔ مسٹر وہاج ابراہیم، اس نے ایسا کب کہا ہے؟ دماغ نے فوراً تردید کی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار، کہہ رہے تھے کہ میری ناراضگی پر اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ دل نے ایک اور بہانہ بنایا، اسے تم سے پسند ہو کیونکہ اس میں تمہارے احسانات یہ ہیں۔ دماغ نے پھر تردید کی۔ دل تو خاموش ہونا ہی کافی بڑا۔ کافی دیر سے احد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل آف کر کے گاڑی میں پھینکا اور سگریٹ جلا کر لہروں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ جو مجھ سے منسوب ہے تمہیں اس کی فکر ہے وجیہ، اور جس کے ساتھ نام جڑا ہے تمہارا، اس کا کیا؟ وہاج ایک بار پھر خود کو کافی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے تک وہ کافی سگریٹ پی چکا تھا۔ تھک ہار کر وہ گھر کی واپس سے لوٹا۔ اس کا گھر ساحل سمندر سے کافی قریب تھا۔ گھر آ کے موبائل آن کیا تو احد کے ساتھ ساتھ وجیہ کی بھی کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے کال بیک کی۔ کال فون اٹینڈ کر لی گئی۔ تم سوئی کیوں نہیں اب تک؟ سلام کے بغیر اس نے سوال کیا۔ میں پڑھائی کر رہی تھی۔ آپ کیوں نہیں سوئی؟ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ وہاج کو یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں باہر تھا، ابھی آیا ہوں۔ وہاج نے سچ بتا دیا۔ باہر کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وجیہ پریشان ہوئی۔ کام تھا ایک، چھوڑو تم یہ بتاؤ کال کیوں کی تھی؟ طبیعت والی بات اس کی گول کر دی۔ در حقیقت اس کے بازو میں کافی درد ہو رہا تھا ڈرائیونگ کی وجہ سے۔ ایک دن ہوا نہیں ہاسپٹل سے آئے، مگر وزیر اعظم صاحب اتنے مصروف ہیں کہ کام ہی ختم نہیں ہوا۔ ملک کے اہم امور بھی تو سنبھالنے ہیں۔ وجیہ کو سخت غصہ آیا۔ وہاج نے بے احتیاط مسکرا دیا۔ دوست سے اسائنمنٹ لینی تھی، اس کا گھر تھوڑا دور ہے۔ وہاں تھا۔ وہاج نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ کال کاٹنے ہی والی تھی کہ وہاج کی آواز پر رکی۔ سنو، شکریہ، وہ مسکرا دیا۔ شکریہ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ میری فکر کرنے کے لیے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، سو جاؤ اب۔ اللہ حافظ، وہاج نے کہہ کر کال کاٹ لی۔ اے میرے رب، میں نے کبھی کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو نہیں وجیہ کی محبت میرے دل میں ڈالی۔ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں پر خوش نہیں۔ اس کے ساتھ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے۔ عشاء کی قضا نماز پڑھ کر وہ لیٹا تو اس سے دعا کرنے کے آج پھر وہ اپنی ہی چیز کو مانگ رہا تھا۔ آج جزیان کی برتھ ڈے اور تم نہیں جا رہی، کتنی خود غرض ہو نا لڑکی، انہوں نے تمہیں بہن بنا کر رکھا اور تم ہو کہ کیسی حالہ ہو تم۔ ویسے صحیح کہتے ہیں، اصل حالہ تو بر اصل ہی ہوتی ہے نا۔ تم کون سا وریشہ آپی کی سکی بہن ہو؟ سارا نے وجیہ کے نہ جانے کے فیصلے پر اچھی خاصی لمبی اور جذباتی تقریر کر دی۔ اور بھلا ایسا ہو سکتا تھا کہ سارا کی جذباتی تقریر پر وجیہ کا اثر نہ ہو؟ وہ بے دلی سے اٹھی اور تیار ہونے چل دی۔ یار کیا پہنوں؟ سارا کو تیار دیکھ کر اس نے ساری ہینگ کپڑے اس کے سامنے کیے۔ اس نے سفید پر بلیک کڑھائی والے کرتی کی طرف اشارہ کیا۔
तो वजिया जल्दी से तैयार होने चली गई। हल्का से मेकअप करके दुपट्टा सर पर लिपटा और सारा की तरफ बढ़ी। वहाँ से कॉल पर बात कर रही थी। चलो वो नीचे खड़ा है। सारा दरवाजा की तरफ बढ़ी तो वो भी मोबाइल उठाकर इसके पीछे चल दी। वो हाल में पहुंची तो सबसे पहले दादी से मिली और फिर सब की तरफ बढ़ी। वरिशा भी इनके पास आई। वो इसके गले लगी। आप ही मेरे शहजादे ने चलना कब शुरू किया? वजियान को गुदगुदी करते हुए बोली। बस 2 महीने पहले। वजिया को हैरत हुई। वरिशा सियान को इसे थमाकर हाल के दाढ़ी दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ से मेहमान दाखिल हो रहे थे। तुम पहली बार इससे मिली हो ना? सारा और जियान को खेलता देखकर वजिया ने पूछा तो इसने इस बात में सर देखो ना बेटा, पहली बार मिला है और कितना मानूस हो गया है। अब मैं हूँ नहीं इतनी अच्छी, क्यों जियान? सारा फही अंदाज में बोली कि वजिया मुस्कुरा करेगी। कितने अच्छे हैं नवाज भाई के घर वाले, मेरी मंगनी तो कोई आ ही नहीं सका। आज पहली बार मिलने का इत्तेफाक हुआ। सारे ने हुस्ना को देखते हुए कहा जो किसी मेहमान से मिल रही थी। हाँ सभी बहुत अच्छे हैं। वजिया ने जियान को तंग करते हुए कहा। वहाज भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ गायब हैं? सारे ने इधर उधर तशवीश देकर सीधा सीधा बोला बेटा कि अहद नजर नहीं आ रहा। वजिया ने एक बात घुमाई। सारा का जानदार के एक बरामदो है। जियान बेटा आपकी मामी बहुत तेज नहीं होती जा रही। सारे ने जियान को मुखातब करते हुए कहा। किन अखियों से वजिया को देखा? शर्म कर लो थोड़ी सी, यहाँ इनकी होने वाली मामी भी मौजूद हैं। वजिया का इशारा सारे की जानब था। इससे पहले हो चुकी मामी भी तो मौजूद है। अब कल किसने देखा? सारे ने कंधे उछाए। दाहरी दरवाजे से वहाज और अहद दाखिल हुए तो मेहमानों से मिलते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। आप बराए मेहरबानी अपना मुंह बंद रखना वरना पूरे हफ्ते तुम्हें खाना नहीं मिलना। वजिया ने ब्लैकमेल किया। सारा को खाना बनाना नहीं आता था। सारा ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर वजिया को देखा। माशाल्लाह वहाज भाई आपका भांजा बहुत प्यारा है, मेरी तो अच्छी दोस्ती होगी है इससे। सारा ने वहाज को आते ही पुकारा था। सारा की गोद से अहद ने जियान को लेते हुए मोबाइल का लॉक खोला। हाँ जी मुझे पड़ गया है, प्यारा तो होगा ना? अहद ने इसके साथ सेल्फी लेते हुए कहा। इसका कुछ नहीं हो सकता, सौ खुशफहमी मरे थे तो ये पैदा हुआ था। वहाज ने ये बात दिल में सोची थी। अहद ने जियान को वहाज की गोद में थमाया और रीशा से मिलने जाने लगा। मैं भी चलती हूँ, रुको अहद। सारा भी गिफ्ट उठाकर खड़ी होगी। वजिया बज़ाहिर मोबाइल में मसरूफ थी। कैसी हो वजिया? वहाज की नरम आवाज इसने सर उठाया। ठीक हूँ आप कैसे हैं? इसने भी हाल चाल पूछकर गोया इंसान के मैं ठीक हूँ। वहाज ने जियान को थबाता हुए बोला। इसे नींद आने लगी थी। इसकी गोद में ही वो आंखें बंद करने लगा। लाएं जियान को मुझे दे दें, मैं इसे सुला दूँ। वहाज ने जियान को इसे थमाया। क्या तुम अभी भी तलाक लेना चाहती हो? वहाज ने लोगों को मुस्कुराते देखते हुए सवाल किया। इस बारे में बाद में बात करेंगे। वजिया ने परेशानी से इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो इसे सारा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वहाज आप यहाँ है, बड़ी मम्मा आपको बुला रही हैं। सारा वहाज को वजिया के साथ देखकर मुंह बनाते हुए चली आई। वजिया ने खड़े होकर सारे से मुसाफे। किस तरफ है मम्मा? वहाज ने लाइन में नजर दौड़ाई। मेरे साथ आ जाए, मैं लेकर चलती हूँ। सारा देख कर आगे बढ़ गई। वहाज इसके पीछे चल पड़ा। जहर लगती है ये लड़की मुझे। सारा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। क्यों मई? सारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वजिया ने इस्तफार किया। तुम्हारे और वहाज भाई के दरमियान क्यों आती है ये? सारा गुस्से से थी। सारा मैं आई हूँ वहाज और सारे के दरमियान। अब तुम मेरी मोहब्बत में किसी के बारे में गलत और बुरे ख्यालात नहीं रख सकती, ये गलत है। अब खामोश रहना, आप ही आ रही हैं। वजिया ने इसे तनबीह किया। सो गया ये लड़का? वरिशा ने सोते ही जियान को देखकर सुकून का सांस लिया और वजिया के पास आकर बैठ गई। हाँ तो लड़की, अब बताओ घर से छुप कर क्यों भाग आई थी? वरिशा ने फिर से वही बात छेड़ी। वजिया मसनीम शक्ल बनाई। आप ही पिछली बात छोड़ दें, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वजिया के कहने पर सारे ने नाराजगी से देखा और जानती थी कि इसे तलाक के बारे में बात करनी है। वजिया ये मौका नहीं है, तुम वो बात करो, तुम बाद में बात कर लेना। सारा ने वजिया को रोका तो वो रुक गई, पर वरिशा परेशान होगी। इसके इस्तफार की वजह से ऐसे सारी बात बतानी पड़ी। ठीक है, मैं वहाज से बात करती हूँ। वरिशा खुद काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बोली और फिर वजिया को यकीन दिलाकर चली गई। क्या तुम खुश हो अपने इस फैसले से वजी? सारा ने अफसरदगी से इसकी जानब। हाँ मैं खुश हूँ, मैं हूँ पर सुकून हूँ। वजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पर न जाने क्यों इसे वजिया की मुस्कुराहट मसनूई लग रही थी। वो मुतमिन नहीं हुई पर खामोश रही। दिन बहुत ही आस्था गुजर रहे थे। यूनिवर्सिटी में भी इसकी सिर्फ अहद से ही मुलाकात हो पाती। इनका फाइनल सेमेस्टर अख्ताम मरहले में था। इम्तहानात बसर पर थे और वहाज चाह कर भी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। घर वालों का इरादा था कि वहाज की यूनिवर्सिटी खत्म होते ही इसकी और सारा के निकाह कर दिया जाए। वहाज मुकम्मल इसे इग्नोर कर रहा थी। वजिया इसे मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। इसका एक ही मुतालबा था, तलाक। अहद और सारा की शादी सेमेस्टर खत्म होते ही इम्तहानात से 1 महीने बाद रख दी गई थी और इसके बाद वजी अकेली हो जाती। वहाज ना इसे छोड़ सकता था ना जिसे रख सकता था। आज वो काफ़ी अरसे बाद चारों एक साथ बैठे थे और इस दौरान में वजिया की नज़रें कैंटीन में आने जाने वो लोगों को देख रही थी। वजिया तुम तलाक तो लेना चाहती हो? ठीक है, यही तय हुआ था।
मगर कुछ महीने बाद मेरी और सारा की शादी हो जाएगी तो हम अकेले किस तरह रहोगी। वो जिस मकसद के लिए बैठे थे अखद ने बात का आगाज़ किया। अच्छा, अगर मैं तलाक ना लूँ तो क्या वह आज मुझे अपनी बीवी के तौर पर अपने घर लेकर जा सकते हैं। वजिया के सवाल पर अखद खामोश रहा। वो दोबारा गोया हुई। नहीं ले जा सकते ना, तो फिर क्या सिर्फ नाम जुड़ा रहने से मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। नहीं हद, अकेले रहने का सवाल तो फिर भी रहेगा ना। हमारा साथ रहना भी तो मुमकिन नहीं, तो फिर नाम जुड़ा रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। वजी ने एक नज़र भी वहाज को नहीं देखा था। अखद खामोश था। हम साथ रह सकते हैं, मैं घर में बात कर लूँगा, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूँगा, वहाज ने कहा। तो अखद और सारा एकदम ही पुरसुकून हो गए थे। और वजी ने पहली बार नज़र उठाकर देखा था। वहाज इसे ही देख रहा था। फिर वहाज ने नज़रें मोड़ ली। और सारा का क्या होगा। वजी ने न चाहते हुए वहाज अपने घर वालों के खिलाफ खड़ा हुआ। इसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सारा को गुस्सा आया। क्या मतलब सोचकर बताऊंगी, जब सारी बातें हो चुकी है तो तुम क्यों सोचोगी। अखद ने हैरत से इसे देखा। मुझे वहाज से मोहब्बत नहीं है, इन्हें होगी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो तूफ़ान ये अपने घर में खड़ा करना चाहते हैं इसे सहने की इनमें ताकत होगी, मुझे में नहीं। इस घर के लोगों ने मुझे बेटी माना है और मैं इनके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती। वजिया कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। इसके जाने के बाद फिज़ा में खामोशी छाई रही। आप फिक्र न करें वहाज भाई, और घर में बात करें, वह मान जाएगी। सारा वहाज को तसल्ली देकर चलेगी। फिक्र मत कर मेरे यार, सब ठीक हो जाएगा। अखद ने इसके कंधे थपथपाए। चलो यार, मैं घर चलता हूँ। वहाज वहाँ से उठकर बोझल कदमों से उठकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। इसे वजिया से इतनी खुदगर्जी की तवक्को नहीं थी। वहाज अगले दिन की पहली फ्लाइट से पेशावर आ गया। सारा भी वहीं आई हुई थी। वो सब मिलकर तबीयत खराबी का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गया। मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं है, हैरियत तो है ना। वहाज हुस्ना ने इसके रूम में आई और इससे सोचा मैं मुँह देखकर टिटकी। मैं ठीक हूँ मामा, बस जरा तबीयत खराब है। वहाज सीधा होकर बैठ गया। ठीक हो भी हो और तबीयत ठीक भी नहीं है, मुझे तो तुम हमारा वहाज ठीक नहीं लग रहा। वो चिल्लाई। पता नहीं मामा, बस अजीब हालत हो रही है, बेसुकूनी है। वो हुस्ना की गोद में सर रखकर लेट गया। मेरे बेटे को कोई परेशानी है, इन्हें वहाज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। मैं सारा से शादी नहीं कर सकता मामा, मैं बच्चियों को छोड़ नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मानता। वहाज ने अपने दिल का हाल अपनी माँ के सामने रख दिया। बेटा, मुझे और वरीशा को भी वजिया बहुत पसंद है और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि वो हमारी बहू हो, मगर सारे से तुम्हारी निस्बत बचपन से तय है, जिसे लगकर ना दो भाइयों को लड़वाना है, इससे बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। बेटा, हुसन ने वहाज को समझाना चाहा। और ज़बरदस्ती का रिश्ता जो आप लोग हमारे दरमियान जोड़ रहे हैं, क्या मैं खुश रह पाऊंगा या ऐसे खुश रख सकूंगा। वहाज ने सर उठाकर अपनी माँ को देखा, जिनकी आंखों में पानी था। बेटा, क्या तुम दो भाइयों को लड़वा कर खुश रह सकोगे। मैंने वहाज को इसी अंदाज में जवाब दिया। मामा, मैं कब चाचू और पापा को लड़वाना चाहता हूँ, क्या ये मसला मिलकर बैठ कर हल नहीं हो सकता। वहाज ने सवाल खत्म नहीं हो रहा, तुम शायद अपने खानदान के बड़ों को जानते नहीं। उसने जैसे रास्ता बंद कर दिया। मामा, तो ये कैसा निज़ाम है जिसमें दो लोगों की पूरी जिंदगी के फैसला अपनी मर्जी से इनकी छोटी सी उम्र में कर दिया जाए, चाहे वो बाद में इनको में कोई इस रिश्ते को बरकरार रख न पाए। वो तलहा हुआ। बेटा, सारे ने अपने दिल में तुमसे जोड़ लिया है, अब जब इसे सब कुछ पता चलेगा वो कितनी टूट जाएगी। हुस्ना को सारे की फिक्र हुई। वजी का नाम जो मेरे साथ जुड़ चुका है, मैंने तो इसे तोहफ़ा देने के लिए कुछ वक्त के लिए अपना नाम इसे दे दिया था, और फिर जब अलग होना तय था तो अल्लाह ने क्यों मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी। इसकी बातों ने हुस्ना को परेशान कर दिया था। अच्छा, तुम फिक्र न करो, अल्लाह से मदद तो सुकून मांगो, सब्र करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। उसे ससरी देकर चली गई और उसने अपना सर बेड पर गिरा लिया। वहाज के अलावा कोई और भी था जो आज बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो मोहब्बत जो मोहब्बत को जान लेने के बाद इसने अपनी मुट्ठी में छुपा ली थी, आज वो मुट्ठी खोलने पर वो मुट्ठी हारी निकली। इससे उम्र की बातें याद आई। क्या मुझे उम्र की बददुआएं लगी थी। नहीं, मोहब्बत करने वाले बददुआ नहीं देते। ये सब इसकी बददुआएं नहीं, बल्कि शायद इसकी दुआओं का नतीजा है। वो वरीशा को काल मिलाते हुए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ वो मुकीम थी। पेशावर आने के बाद आज की रात शौक की रात थी। इस घर के दो मलकिनों के लिए वो जिनकी निस्बतें तय थी। आखिर तो सारा की शादी में अभी 2 महीने बाकी थे, जबकि सारा और उमर का निकाह और वहाज का वजिया के साथ वलीमा इस महीने के आखिरी तारीख में तय कर दिया गया। जा मेरे भाई, तू जाकर भाभी को मना, हम लंच करने जा रहे हैं। आखिर सारा को लेकर चला गया, जबकि वहाज भी एयरपोर्ट से सीधा वजिया के घर पहुंचा। काफ़ी देर तक डोर बजाते रहा, पर किसी ने दरवाज़ा न खोला तो वहाज एकदम परेशान हो गया। इसने वजिया का नंबर डायल किया तो मोबाइल ऑफ था। इसने दरवाज़ा डोर पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। वहाज की जान में जान आई। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा सोती हो। वहाज सीधा अंदर आ गया और वह हैरान परेशान सी नींद से बोझल आंखें लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी।
مجھے لگا سارا آ گئی ہے، وہ اسلام آباد گئی ہوئی تھی، لیکن میں تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ بتا کر آتی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھی۔ ویسے آپ بھی تو پشاور میں تھے نا؟ کراچی کب آئی؟ اس نے سوال کیا تو وہاج نے جان بننے کی داڑھی شروع کر دی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں پشاور میں ہوں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہماری ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی نا؟ سارے نے بتایا تھا، وجی نے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ اوہ، تو ہمارا ذکر بھی ہوتا ہے امیروں کی محفل میں؟ وہاج نے بے تکا شکوہ کیا۔ ہاں ہاں، امیر ہم نہیں، امیر آپ ہیں، وجیہ نے ظفر کیا۔ خیر، میں آپ کو کچھ بتانے آیا ہوں، وہاج نے مسکراتے ہو کہا، جس پر وجیہ ماتھے پر شک نہیں ابھری۔ گھر میں سب مان گئے ہیں، میں نے سب کو بتا دیا ہمارے نکاح کا۔ وہ رکا پھر مزید گویا، وجیہ میری محبت پاک اور خالص تھی، اللہ نے مجھے ناامید نہیں کیا۔ مجھے یقین نہیں آیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے گھر والے کیسے مان سکتے ہیں؟ سارے کے پاپا اور آپ کے پاپا کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ وجیہ حیران تھی۔ وجیہ نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر سارا صاحبہ بھی آپ سب کے ساتھ تھی وہاں؟ بھائی نہ جانے کیوں وجیہ کو اندر تک سکون اٹھتا تھا محسوس ہوا تھا، لیکن وہاج سارا عمر کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ وہ تو آپ سے محبت کرتی ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ وجیہ جیا وہاج کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ اچھے دوست رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، ایسا انہوں نے خود کہا تھا۔ وہاج پر سکون تھا، پر وجیہ کے لیے یہ بات قبول کرنا انتہائی مشکل تھا۔ ہے، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، تم میمونہ پھوپھو کے گھر جاؤ، وہاں سے وریشا اور پھوپھو کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے۔ تم نے سارا بھی کچھ دیر میں وہاں آ رہی ہے، اس مہینے کی آخری تاریخ میں ہمارا ولیمہ ہے اور ساتھ میں عمر اور سارا کا نکاح بھی۔ وہاج نے حکم صادر کیا۔ ویسے وہاج یہ اتنی آسانی سے کس طرح ہو گیا؟ بظاہر اتنا آسان تو نہیں تھا، وجیہ کو سب کچھ جیسے خواب لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے خیر کی دعا مانگی تھی اور وہاج جو ہمیشہ سے اس کے لیے خیر ثابت ہوا تھا، خیر کی صورت میں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ وہ خوش تھی مگر ظاہر نہ کیا۔ کہتے ہیں نا، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، شاید کچھ سچی اور کچھ خالص محبتوں کی دعاؤں کے زیر اثر اللہ نے ہمارا ساتھ لکھ دیا۔ وہ مسکرایا تھا، لیکن میں نے تو آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں مانگا تھا۔ وجیہ نے سادگی سے سچ بتا دیا۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو وجیہ؟ اگر نہیں کرتی تو بتا دو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، اب چاہے خوشی ہمارے ساتھ میں ہو یا الگ رونے میں۔ وہاج نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وجیہ نے بہتر نفی میں سر ہلایا۔ وہاج مسکراہٹ روک نہ سکا۔ ابھی بھی تم مت کہنا کہ ہاں ہے محبت، کہیں تمہاری شان میں کمی نہ آ جائے، وہاج نے ملامتی نظر انداز میں کہا تو وہ اسی کے سر پر چیخ لگاتا صوفے پر لیٹ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وجیہ آنکھیں نکالے کھڑی ہوئی اور اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ وہاج حیران پریشان سے دیکھنے لگا، سارے کوشچن دوسرے صوفے پر کیوں پھینک دیے؟ وجیہ مسلسل گھور رہی تھی۔ استغفراللہ، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی اور یہ شیرنی کی طرح مجھ سے لڑنے لگی۔ وہاج بیٹا، تیرا اللہ ہی حافظ۔ پھر میں آخری جملہ آخر کا دہرایا تو وہ وجیہ ہنسی نہ روک سکی۔ ساری زندگی یوں ہی ہنسی رہنا؟ وہاج مسکراتے بولے۔ وجیہ بھی مسکرا دی۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس میں کچھ دن صرف خوش اور کچھ دن صرف غموں کے نظر نہیں ہو سکتے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں، ہر خزاں کے بعد بہار، ہر رات کے بعد دن ہے، مسلسل تبدیلیاں اور آزمائشوں کے نام ہی تو زندگی ہے۔ میں صفا ہوں، اپنے باپ اور بہن کی لاڈلی، مگر افسوس میں نے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا، اور میری عزت کیا، میری تو خود بھی میں مر گئی، مگر میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ نہ جانے مجھے جیسی لڑکیاں اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہیں جو نامحرموں کی باتوں میں ان کی محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے محرم رشتوں کی محبت بول جاتی ہیں۔ میں بھی ویسے ہی ایک بے وقوف لڑکی ہوں جو باس رضوی کی حوص کا نشانہ بنی، اس کی چھوٹی جھوٹی محبت بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلی گئی اور اپنی عزت اپنی بے وقوفیوں کی نظر کرائی۔ جان لیلی میں نے بابا کے میں جو سمجھتی تھی کہ بابا کو کبھی نہیں پتہ چلے گا، میں غلط تھی۔ انہوں نے میری اور وجی کی باتیں سن لی تھی اور پھر ان کا دل بند ہو گیا اور ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ گئے۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں زانی ہوں، میں قاتل ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اور وجی، وہ تو مجھ سے نفرت کرنے لگی ہوگی، میں نے اس سے بابا کو چھین لیا، مجھے اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، مجھے اب ڈر لگتا ہے انسانوں سے، میں منع چاہتی ہوں، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ رات میں نے وجی سے معافی مانگی بے وقوف بننے پر اور اس نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں خود کو معاف نہیں کر سکتی، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے معافی مانگنے وجی میرے لیے بخشش کی دعا کرنا، میں ایک اور حرام کام کرنے جا رہی ہوں، میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں کہ مجھے زندگی سے خوف آتا ہے۔ چلو چھوڑو دنیا کی بے روحیاں، وہ سامنے دیکھو قبرستان میں کتنا سکون ہے۔ اگر کوئی جو بھی لڑکی میری اس اسٹوری کو سن رہی ہے، اگر ہم لڑکیاں اس چیز پہ عمل کر دیں، پہلے ہی اپنے قدموں کو، اپنی سوچوں کو روک لیں، تو ہم بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی ٹینشنوں سے اور گناہوں سے بچ سکتی ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکتی ہیں۔
کبھی بھی کسی نامحرم کی باتوں میں نہیں آنا. محبت اسی وقت جائز ہوتی ہے جب وہ آپ کا محرم بن جاتے ہیں. اس سے پہلے سب گناہ ہے، سب غلط ہے. اور اس کہانی سے اگر کوئی سمجھے تو بہت اچھا سبق ہے اس کے اندر. یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، ان کے اندر بہت بڑا سبق ہوتے ہیں صرف سمجھنے والوں کے لیے. ہو سکے تو میری کہانی جو بھی سن رہا ہے اور کسی بھی ایسی راہ پہ جو بھی لڑکی چل رہی ہے تو پلیز اپنے قدموں کو ابھی ہی روک لیں، اس سے پہلے کہ آپ اس دلدل میں پھنس جائیں جس سے آپ نکلنا ناممکن ہو. اوکے، اللہ حافظ.